عیسیٰ میری جان اندر آ جاؤ، دیکھو پھوپھو تمہارے لیے گفٹ لائی ہے۔ عیسیٰ لان میں جھولے پر بیٹھا چپس کھا رہا تھا جب سارا نے اسے پکارا۔ 6 سالہ عیسیٰ پھوپھو کا نام سن کر خوشی سے دوڑتا ہوا آیا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑام سے نیچے آن گرا۔ اس کے ساتھ ہی رونا اس نے شروع کر دیا کیونکہ گھٹنا چھل گیا تھا۔ دور کھڑی سارا نے یہ منظر دیکھا تو دل دہل گیا۔ آرام سے آتے ہیں بیٹا۔ اس کی چوٹ نے اس کی ممتا کو ہراسا کے تو بھاگ کر قریب آئی اور اسے اپنے سینے میں لگا لیا۔ دکھاؤ کہاں لگی ہے؟ خود سے الگ کرتے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے سارا نے زخم کا معائنہ کیا۔ اس کے گھٹنے سے خون بہنے لگا تھا۔ اوہو، میرے بچے کو ساری چوٹ لگ گئی۔ اسے دل سے افسوس ہوا اور پھر وہ اسے گود میں اٹھا کر اندر کی جانب لگ گئی۔ عیسیٰ ابھی تک رو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بابی؟ عیسیٰ کی آواز پر عرشیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ کھلے بالوں کے ساتھ ڈھیلے ڈھالے سے گرین سوٹ میں وہ خوش شکل لڑکی لگ بھگ 25 سال کی تھی۔ وہ ان دونوں ماں بیٹا کو دیکھ کر ہلکا سا گھبرا گئی تھی۔ چہرے پر تفکر کے اثرات بھی نمایاں ہوئے۔ کچھ نہیں، تمہارا نام سنتے ہی دوڑا چلا رہا تھا مگر گر گیا۔ سارا نے عیسیٰ کو صوفے پر لٹاتے اس کی اطلاع کے لیے عرض کیا۔ دیکھ کر چلا کرو میری جان، دیکھا کتنا خون بہہ گیا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے زخم پر نظر ڈالتی پھرتی سے واپس مڑ گئی۔ فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم اور پٹی نکال کر اسے بینڈیج کرنے کے بعد اسے ٹیبلٹ پیش کی، لیکن ننھے وجود نے کھانے سے انکار کر دیا۔ عیسیٰ، اگر آپ یہ نہیں کھاؤ گے تو پھپھو انجیکشن لگا دے گی، اور جو آپ کے لیے گفٹ لیا تھا نا وہ بھی کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ عرشیہ کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ عیسیٰ نے حیرت کی فراوانی سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور پھر اپنی ماں سارا کو۔ سارا نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا کہ جیسے عرشیہ کی دھمکی کے آگے وہ بے بس ہو۔ ٹھیک ہے، میں کھا لوں گا، لیکن پہلے چاکلیٹ دیں، مجھ سے اتنی کڑوی دوائی نہیں کھائی جاتی۔ وہ روحانسا ہوا تو عرشیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو ہاتھ میں چاکلیٹ اور ایک بیگ تھا۔ عیسیٰ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے فوراً سے پیچھتے دوائی کھائی اور پھر چاکلیٹ کا ایک بائٹ لینے کے بعد بیگ چپٹ لیا جس میں ریموٹ کنٹرول کار تھی۔ یاہو، اب بیسٹ پھوپھو ہے۔ کار دیکھنے کے بعد وہ خوشی سے سیکھتا عرشیہ کے گلے لگ گیا تھا۔ عرشیہ نے مسکرا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ سارا ان دونوں کا جذباتی سین دیکھتی مسکرا دی تھی۔ عرشیہ ہر ماہ کے آغاز میں اپنی سیلری ملتے اس کے لیے تحفہ خرید کر لاتی تھی۔ احسن اور سارا اسے منع کرتے تھے مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ اسے عیسیٰ سے بے تحاشا محبت تھی کیونکہ اس کا اکلوتا بھتیجا تھا اور اسی کا لاڈ پیار تھا کہ عیسیٰ کافی بگڑ گیا تھا۔ وہ بلا جھجک اس سے ہر شے کی فرمائش کر لیتا تھا۔ اگر احسن یا سارا اس کی بات ٹالتے تو وہ عرشیہ دی گریٹ پھوپھو سے منوا لیتا تھا۔ احسن اور عرشیہ صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ عرشیہ کے والد اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے احسن نے بہن کی ذمہ داری با احسن خوبی نبھائی تھی اور اسے پڑھا لکھا کر ایک قابل ڈاکٹر بنایا تھا۔ آج وہ ایک اسپتال میں بہترین ڈاکٹر کے طور پر اپنا آپ منوا رہی تھی۔ اس کا شمار اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ڈاکٹرز میں ہوتا تھا۔ محض 25 سال کی عمر میں وہ اتنا اہم فریضہ انجام دیتے اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں جاتے وہ بہت سے ڈاکٹرز کو سالوں درکار ہوتے تھے۔ وہ ایک سنجیدہ، میچور اور عورت کی آزادی پر یقین رکھنے والی لڑکی تھی۔ پرانی روایتیں اور رسم و رواج سے اسے شدید چڑ تھی۔ اس کے مرحوم والد حفیظ کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے والے کسی محنت کش کسان کے بیٹے تھے، لیکن انہیں اپنے باپ کے کام میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے حفیظ صاحب شہر چلے آئے اور یہاں پڑھ لکھ کر اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ لیکن ان کے والدین ان کے اس عمل سے خاصے ناراض ہو گئے تھے، لہٰذا اپنے والدین کو منانے کی خاطر وہ بیوی بچوں سمیت گاؤں واپس لوٹ آئے۔ ان کی ماں کو شکوہ تھا کہ بیٹا شہری بابو بن کر اپنی اکلوتی بہن کو بھول جائے گا جو اسی گاؤں میں اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ اگر حفیظ صاحب شہر میں رہتے اور ان کی اولاد جوان ہو جاتی تو وہ یقیناً انہی میں لگ جاتے اور بہن کو چھوڑ دیتے۔ لہٰذا اپنے تمام خدشات انہوں نے حفیظ صاحب اور ان کی اہلیہ گلناز بیگم کے سامنے رکھے۔ حفیظ صاحب نے خوب وعدے کیے لیکن ان دونوں کو ان کے وعدوں پر یقین نہ آیا۔ بالآخر وہ تھک ہار گئے۔ ان کا بزنس شہر میں سیٹ تھا اور پھر وہ 2 بیوی بچوں سمیت کہاں کب تک ڈیرے جمائے رہ جا سکتے تھے۔ ان کی بڑی بہن شائستہ نے بھی والدین کو تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر حفیظ بھائی مجھے بھول بھی گئے تو میں اپنا گھر شہر میں خرید لوں گی اور ان کی ہمسائی بن جاؤں گی، شائستہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن ان کے والدین کی دلچسپی نہ ہو سکی۔ حفیظ، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تم دونوں بہن بھائیوں کو ملا کر جاؤ۔ تم احسن کے لیے سارا رکھ لو اور فہد کے لیے
अर्शिया दे दो। बाप की बात सुनकर हफीज साहब दंग रह गए। ये क्या कह रहे हैं अबू? मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी सब बहुत छोटे हैं, मैं इन बच्चों की ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया क्योंकि वो खुद आज़ाद रहने के कायल थे। उन्होंने अपनी मर्ज़ी और पसंद से शादी की थी, तो फिर अपनी औलाद पर ऐसा जबर क्यों कर सकते थे? शाइस्ता को भी ये फैसला पसंद नहीं आया था, लेकिन वो भाई की तरह दो टोक इनकार नहीं कर पाई थी। अलबत्ता काफ़ी बहस और तकरार के बाद बिलाखिर ये रिश्ता तय हो ही गया। सारा और एहसन का निकाह कर दिया गया, क्योंकि एहसन उस वक्त 14 साल का था और सारा 9 साल की। अलबत्ता फ़हद 10 साल का था और अर्शिया 4 साल की थी। लिहाजा उन दोनों की मंगनी को के बंधन में बांध दिया गया। अब चूंकि ये रिश्ते हफीज़ साहब और शाइस्ता बेगम के वालिदैन के किए हुए थे, इसलिए उनसे इनकार और इकरार मुमकिन नहीं था। हफीज़ साहब अक्सर बेशतर बहन के हाथ चक्कर लगाया करते थे। पहले तो गुरनाज बेगम ने मुखालफत की, लेकिन फिर अपने शौहर की खातिर जहर पी लिया। आखिर उनकी औलाद थी, उन्हें फैसला करने का हक नहीं दिया गया था। और दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम के शौहर सुल्तान साहब ने भी एतराज़ करता था, लेकिन सास ससुर की खातिर अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ा। और ख़ुद उन्होंने ही तजवीज़ पेश की थी कि अगर सारा और एहसन का निकाह होगा तो फिर एहसन की बहन अर्शिया का निकाह उनके बेटे फ़हद से किया जाएगा। हफीज़ साहब रट्टे सट्टे के ख़िलाफ़ थे, लेकिन फिर बाप का मुंह देखकर लब पीच गए, जिन्होंने सबके सामने इस रिश्ते की हामी भर ली थी। बस फिर सभी मजबूर हो गए और यूँ रिश्ते तय पा गए। सालों गुजर गए और एक रोज़ हफीज़ साहब चल बसे, लेकिन जाने से कबल उन्होंने गुलनाज बेगम से वादा लिया कि वो उनके वालिद मरहूम के किए गए फैसलों से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगी और ना ही शाइस्ता बेगम को कभी अकेला छोड़ेंगी। उन्होंने वादा कर लिया था। उनकी रहलत के बाद वो ऐसी वफाशार खातून साबित हुई कि गांव आने जाने लगी और एहसन के लिए सारा उन्हें हर लिहाज से बहुत पसंद थी, जबकि फ़हद सुल्तान भी उन्हें अपनी बेटी के लिए परफेक्ट लगता था। एहसन को जब मालूम हुआ कि उनका निकाह बचपन से वो फिजात लड़की से तय है, तो वो कुछ उलझा, लेकिन सारा से मिलकर तमाम उलझनें दूर हो गई और मोहब्बत का मीठा एहसास जाग गया। उन दोनों को तो मोहब्बत हो गई और ये रुश्ती भी तय पा गई, लेकिन अर्शिया और फ़हद में ऐसा कोई सीन ना हो सका। वो दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ते थे। उल्टा जब अर्शिया को मालूम हुआ कि उसका रिश्ता फ़हद से हो चुका है, जो कि उसके दादा और दादी ने किया था, तो उसने उसे गांव के फरसुदा रस्म और रवाज कहकर टाल दिया। वो अपनी मर्जी की मालिक थी, एक आज़ाद लड़की थी जो यकीनन अपनी पसंद से शादी करने वाली थी। उसे किसी फ़हद सुल्तान में सिरे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। और दूसरी तरफ फ़हद जो MBA की डिग्री बैरून मुल्क से लेकर आया था और उसे यहाँ अपना बिजनेस शुरू कर चुका था, उसे भी अपनी बचपन की मंगेतर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत ज़्यादा ख्याली और अपनी मंशा और मन मर्जी का दिलदादा था। एहसन और सारा की शादी को 7 साल गुजर चुके थे और अब शाइस्ता बेगम अर्शिया को जल्द से जल्द अपनी बहू बना लेना चाहती थी, लेकिन फ़हद मान कर ही नहीं दे रहा था। उन्हें अपनी काली चादर ओढ़ी तो ज़मीन पर अंधेरा छा गया। शहर लाहौर मसनूई रोशनियों से जगमगा उठा। सड़कों पर मुख्तलिफ ज़रिया आमदोरफ़त का शोर और भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोगों का जम गफ़ीर था। उन्हें गाड़ियों में से एक फ़हद सुल्तान की थी। अपने घर पहुंचा और गेट अबूर करके पोर्च में गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो खिलाफ़े मामूल उसे शाइस्ता बेगम लाउंज में बैठी मिल गई। मम्मा, आप अभी तक जाग रही हैं? घड़ी पर नज़र डालता वो हैरान हुआ, क्योंकि इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। जवान बेटा घर से बाहर हो तो माँ को नींद नहीं आती है। उन्होंने नाराज़गी से शिकवा किया। ओ कम ऑन मामा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, 32 साल का हो गया। आपको कोई फजूल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने हंसकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई और टाई की नाट ढीली करता उनके पहलू में टिक गया। वही तो, अब ये फजूल टेंशन मेरी बहू को लेनी चाहिए। वैसे तुम्हें खुद तो शर्म नहीं आती कि 32 साल की होकर अभी तक कवारे फिर रहे हो? उन्होंने पलकी सुकेर कर कदरे गुस्से से कहा। तब की बार वो मुस्कुरा भी न सका। नजरें बाहरी बूटों पर टिकाए वो संजीदा ही रहा। आई एम सॉरी मामा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं और अर्शिया दोनों बिल्कुल अलग सोच रखने वाले हैं। हमारी शादी का ख्याल आप दिल से निकाल दें। उसे झिंझला कर मना किया। मैं ऐसा नहीं कर सकती फ़ार, मेरे रिश्ता अब्बू ने तय किया था और मैं इससे मुकर नहीं सकती। उन्होंने दुख से कहा। ये नाना जानना मुझे किस मुसीबत में डाल गए हैं। क्या ज़रूरत थी उन्हें बचपन में हमारे गले घुटने की? 10 साल ये कोई उम्र है बच्चे का रिश्ता तय कर दिया जाए? प्लीज़। सारा की बात अलग थी, वो और एहसन एक दूसरे को पसंद करते थे।
लेकिन मैं अर्शिया को पसंद नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। हमेशा से वो टालता आया था, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि चलो दो टोक बात हो ही जाए। कबूल करना होगा तुम्हें अर्शिया को, हर सूरत कबूल करना होगा, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारी नाना की मर्जी से नहीं बल्कि मेरी मर्जी से हुआ था। दोनों माँ बेटे ने चौंक कर देखा। पीछे सुल्तान साहब खड़े थे, कमर पर हाथ बांधे। वो खास से बारोब अंदाज में कह रहे थे। उनकी तबीयत में अब भी गांव के वडेरों जैसा वक़ार कायम था। अगरचे अपने बच्चों की अच्छी तालीम तरबियत के लिए उन्हें गांव छोड़ दिया था, मगर उन रवायात से मुंह नहीं मोड़ा था जो उनकी घुट्टी में शामिल की गई थी। फहद के लिए बात हैरान कुन थी कि उसका रिश्ता सुल्तान साहब ने तय किया था, और वो जानता था कि सुल्तान साहब किस कदर असूल परस्त इंसान थे, जो कि अपनी बात से 1 इंच पीछे नहीं हटते थे। तुम अगर शादी करोगे तो सिर्फ अर्शिया से, शाइस्ता कमरे में चलो, सुबह जल्दी उठना है और शादी की तारीख लेने जाना है। उन्होंने संजीदगी से कहा तो शाइस्ता बेगम सर हिलाकर उठ गई थी, जबकि फहद आंखें फैलाए बाप को देख रहा था, जो खड़े खड़े शादी की तारीख रखने की बातें कर रहे थे। अब तुम भी जल्दी घर जाने की आदत डाल लो और दोस्तों से ना जान छुड़वा ले, वरना मजबूरन ये काम हमारी बहू को करना पड़ेगा। उनका लबो लहजा इतना सख्ती लिए हुए था, वो शुरू से ही ऐसे थे। उनकी बात हरफे आखिर हुआ करती थी। उन दोनों के जाते ही फहद सुल्तान एकदम बेचैन हुआ। उसे आदत ही कब थी उस पर फैसले थोपे जाते। बचपन से अब तक वो अपनी मर्जी करता आया था, और अब जब जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना था तो इस पर अपनी पसंद मुसल्लित कर रहे थे। उसे घुटन होने लगी तो वो उठकर अपने कमरे की बालकनी में आ गया, जहाँ रात खामोशी से सरक रही थी और अधूरा चांद थक कर आंखें मूंदने लगा था। अर्शिया, तुमने खाना खा लिया? गुलनाज बेगम ने अपनी सोहनी शहजादी को देखते इस्तफार किया, जो कि बड़ी संजीदगी से उनका बीपी चेक कर रही थी। नहीं, अभी कुछ देर में खाऊंगी, उसने लब दबाते हुए कहा, जबकि नजरें अस्फेग्मो मैन्योमीटर पर जमी हुई थी। आपको कुछ कहना था? स्टेथोस्कोप को कान से लगाकर गले में रखते उसने इस्तफार किया। गुलनार बेगम लब भींच गई। वो जानती थी कि जिस बात के लिए उन्होंने अर्शिया को तलब किया था, अगर वो कह देती तो यकीनन उसका खाना हराम हो जाता। आपका बीपी लो हो रहा है, आपने मेडिसिन नहीं ली? अगले लम्हे उसने सुइयों पर निगाह डालते हुए फिक्रमंदी से कहा, दवाई खाई तो है। अब उसे क्या बताती कि किस बात की फिक्र में लगी हुई थी। अपना ख्याल रखा करे मामा, मेरे पास तो बाबा भी नहीं है। एहसन भाई और आप मेरा कुल असासा है, उसने माँ के गालों को मोहब्बत से छूकर नम लहजे में कहा। तो गुलनाज बेगम को हफीज साहब याद आ गए। उनकी आंखों में भर आई। तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हें अपने हाथों से रुखसत करते, ऐसा ना होता तो मैंने ये फर्ज कैसे अदा करना था। अर्शी उनकी बात सुनकर हैरान हो गई। वो ये क्या कह रही थी? आज शाइस्ता आई थी तुम्हारी शादी की तारीख लेने। मैंने कहा कि एहसन और तुम्हारी राय ले लो, फिर ही कोई तारीख बताओ। उन्होंने शफकत से उसकी ठोड़ी को चूहा तो उकता गई। वहाँ प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहती, आप समझ क्यों नहीं रही? वो एकदम उठ खड़ी हुई तो गुलनाज बेगम परेशान हो गई। तुम्हें कोई और पसंद है? उन्होंने खदशा जाहिर किया। हाँ, मेरे एक कॉलीग हैं डॉक्टर सुलेमान, उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैं सोच रही हूँ कि हाँ कर दूँ। उसकी इस कदर साफ जवाब पर गुलनाज बेगम का सुकून गायब हो गया। इसीलिए आप उन्हें मना कर दें, मैं किसी फहद सुल्तान में इंटरेस्ट नहीं हूँ। आप जानती हैं ना कि सुल्तान अंकल किस तरह का माइंड सेट रखते हैं। यकीनन उनका बेटा भी वैसा ही होगा, और मुझे अपनी आज़ादी ना बहुत प्यारी है। कतई अंदाज से कहती वो उन्हें तजब्जब में डाल गई थी। गुलनाज बेगम मुख्तलिफ सोचों में गड़ी गई। फिर उन्होंने फ़ोन पर ही शाइस्ता बेगम से माजरत कर ली कि वो इस रिश्ते के हक में नहीं है। जब बात सुल्तान साहब के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। वो तो हत्थे से ही उखड़ गए और अगले ही रोज़ दंदनाते हुए उनके यहाँ पहुंच गए। ये बात आप किस बुनियाद पर कह रही हैं भाभी? आप जानती भी हैं मैंने सारा का निकाह एहसन से ही इसी शर्त पर किया था कि आप अर्शिया फहद के लिए देंगी। उन्होंने खुशमगीन निगाहों से घूरते हुए कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। हम मिजाज के ज़रा तेज़ थे, अलबत्ता उनके पहनों में बैठी शाइस्ता बेगम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो रिश्तों में कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। आपकी बात दुरुस्त है साहब, लेकिन बच्चे अगर राज़ी नहीं है तो हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। वो खुद मजबूर थी, कैसे कह देती कि अर्शिया किसी और को पसंद करती थी। ठीक है, फिर मुझे भी सारा और एहसन का रिश्ता कबूल नहीं है। चलो सारा, सामान पैक करो अपना।
तुम हमारे साथ जा रही हो। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोले तो एहसन की पेशानी पर बल पड़ गए। उसे उनकी बात नागवार गुजरी थी। शाइस्ता बेगम भी बेबसी से शोहर का गसीला अंदाज मुलाहिजा कर रही थी। भाई साहब, तहम्मुल से काम लीजिए, बेटी का घर क्यों खराब कर रहे हैं? उन्होंने मुसालहत अमेज लहजे में कहा, क्योंकि मुझे इस रिश्ते से एतराज़ है। अगर अर्शिया हमारी बहू नहीं बनेगी तो सारा को भी मैं इस घर में रहने नहीं दूंगा। क्या कमी है मेरे फाहद जो आप उसका रिश्ता ठुकरा रही है? सारा उड़ते हुए रंग के साथ बाप का चेहरा देखने लगी। उसे मालूम था कि वो अपने फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उसने फरियाद करती निगाहों से एहसन को देखा, जैसे कह रही हो कि तुम्हारी बहन की जिद हमें ले डूबेगी। अंकल, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अर्शिया आपकी बहू थी और आपकी ही घर जाएगी वो। एहसन ने बात संभाली, जबकि अपने कमरे की खिड़की से कि सारा तमाशा देखती अर्शिया कोयलों पर लौट गई। उसे हैरत हुई कि अपना घर बचाने के लिए एहसन उसे दांव पर लगा रहा था। बस जुमे को निकाह की रस्म होगी और अगले महीने की 27 तारीख को हम बारात ले आएंगे। वो आखिरी बात कहकर उठे और कमरे से बाहर निकल गए। रिश्तों में बदमज़गी पैदा हो ही गई थी। एहसन ने शिकायती निगाहों से सारा को देखा तो सर झुका गई। अर्शिया ने पाँव पटके और पर्दा खींच दिया। उसे अपने भाई से ये उम्मीद नहीं थी कि उसने सारा को चुनकर अर्शिया को दहकती दोजख में धकेल दिया था। मामा, ये सब क्या है? तकरीबन चीखा, आहिस्ता बोलो, तुम्हारे बाबा ने सुन लिया तो क्या मत आ जाएगी। शाइस्ता बेगम ने डपटा, कल तुम्हारा निकाह है, उसके लिए तैयार हो जाओ और याद रखना, अगर सारा का घर खराब हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने उंगली दिखाकर तनबिया की तो चिढ़ गया। बाबा सिर्फ हमें धमका रहे हैं, वरना कोई बाप अपनी बेटी का घर खराब नहीं करता। उसे ये सब धमकियां फजूल लग रही। मेरे ससुराल वालों के सामने कल बाबा ने कहा था कि मैं उनके साथ चलूं और आज उन्होंने ड्राइवर भेज दिया मुझे लेने। अंदर आती सारा ने कदरे झिंझलाते हुए अंदाज में कहा तो दोनों चौंके। मामू, ईसा भागते हुए आया और उसके गले लग गया। फहद ने झुककर उसे उठा लिया, फिर दोनों ने मुट्ठी बंद करके एक दूसरे से टकराई। ये उनका हैंडशेक था। अब फहद ने उसकी छोटी सी नाक को खींचा तो खिलखिलाकर हंस दिया। सारा ने शाइस्ता बेगम को गले लगाया और फहद ने उसे हाथ मिलाकर अपने साथ खींचकर सोफे पर बैठा लिया। वो काफ़ी ज़्यादा खफाल खफाखबासी लगती थी। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, आखिर ये मसला कैसे हल होगा? शाइस्ता बेगम की तशवीश हद से ज़्यादा थी। मसला? मामा, आपको ये मसला लग रहा है? ये तो खुशी का मौका है जो हमें हंसते हुए गुजारना है, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। सारा सख्त उकताहट का शिकार थी। भाई की शादी पर बहनों के कितने अरमान होते हैं और यहाँ उसका अपना हंसता बसता घर खतरे में पड़ रहा था। सर पर 2 धाड़ी तलवार लटक रही थी। सारा, फाद ने उसे पुकारा। मजीद कुछ कह रहा था। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। क्या कीड़े पड़े हैं अर्शिया में जो तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? अर्शिया ने भी यही डट लगा रखी है कि तुमसे शादी नहीं करेगी, और तुमने भी। बचपन में क्या एक दूसरे का सर फाड़ा था तुम लोगों ने? वो लत्ते लेने लगी थी उसकी तो फाद सर झुका गया। ताहम उसे ये बात चुप सी गई थी कि अर्शिया इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। हालांकि वो खुद भी यही चाहता था, लेकिन न जाने क्यों अर्शिया का इनकार उसे तीर की तरह लगा था। अब पता नहीं बाबा के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया? मैं एहसन कैसे कहकर आई हूँ कि बाजार जाना, अर्शिया के लिए शॉपिंग करने। वो अजहद परेशानी का शिकार थी। हाँ तो हम बाजार ही जा रहे हैं। शाइस्ता बेगम ने फौरन कहा, चलो उठो फाद, गाड़ी निकालो, हमें दुल्हन का लहंगा खरीदना है। उन्होंने कड़े तेवरों से इनकार की कोई गुंजाइश ना छोड़ते हुए कहा। तो फाहद ने बेयकीनी से उन्हें देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? एक आवाज़ समझ नहीं आती क्या? कल निकाह है तुम्हारा और अर्शिया का, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। वो दो टोक अंदाज में कहती अंदर चले गई और सारा भी उनके पीछे लग गई। मामू, आपकी शादी हो रही है पप्पू के साथ, बहुत मज़ा आएगा। ईसा ने उसकी दाढ़ी ज़दा काल को छूते हुए कहा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे सर्द हथौड़ा दे मारा हो। हाँ, वाकई बहुत मज़ा आएगा। दिल गिरफ्तगी से कहता उसे वहीं छोड़कर उठा। अब उसे बाजार जाना था, अपनी माँ और बहन को लेकर। अर्शी, मेरी गुड़िया, क्या हुआ है? वो मुंह फुलाए बैठे थे तो एहसन ने आकर उसे पुचकारा। उसके बीचे हुए तासुरात नदीद बीज गए। आपने ऐसा क्यों किया भाई? वो यकदम ही शिकवा कना हुई तो आंसू टूट कर गालों पर बहे। बी प्रैक्टिकल अर्शी, तुम एक टीन एज लड़की की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? जानती हो कि मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए तो किया है। उसे अपनी बाहों में बढ़ता मोहब्बत से बोला।
آپ نے صرف اپنا گھر بچایا۔ وہ ناراضگی سے کہتی پوٹ پوٹ کر روتی تھی۔ میں نے تمہیں سیکیور کیا بیٹا، فہد اچھا لڑکا ہے، تم یقیناً اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ اسے یقین سے کہا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا وہ اپنے باپ کی طرح ہوگا۔ اسے یہی خدشہ تھا۔ اول تو ایسا نہیں ہے کیونکہ میں جانتا، اور اگر ایسا ہوا بھی تو جو میری بہن کو رلائے گا میں اس کی بہن کو رلاؤں گا۔ اس نے کندھے اچکا کر بڑی آسانی سے کہا، آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ سارا بابی آپ کی محبت ہے۔ اس سے آنسو پوچھے جبکہ آنکھوں میں بے یقینی ہلکورے رہ رہی تھی۔ ہاں، لیکن میں عرشی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے اگر اس کے بھائی نے میری گڑیا کو تکلیف دی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر ایمان لاتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ گاؤں کی گٹیا رسم ہم پڑھے لکھے لوگ اس ماڈرن ماحول میں رہتے ہوئے کیوں اپنائے؟ دل اب بھی اس کا راضی نہیں ہوا تھا۔ دیکھو، یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے، اس لیے اسے فرسودہ کہیں یا گھٹیا، لیکن نبھانا تو پڑے گا۔ ہاں، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتاؤ، پھر میں سلطان انکل سے بات کروں گا۔ اس نے بلاخر دل پر پتھر رکھتے ہوئے عرشیہ کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مان جائیں گے؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ نہیں، وہ نہیں مانیں گے، لیکن میں سارا کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے سارا کو اسی لیے گھر بلایا ہے۔ وہ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر بٹھا سکتے ہیں۔ اس کے سارے خوف اور خدشات پر حق تھے، کیونکہ سلطان صاحب کی غصیری طبیعت اور باروب مزاج سے سبھی واقف تھے۔ وہ ضد میں آ کر ایسا کر سکتے تھے۔ اب آپ کیا کریں گے بھائی؟ اس نے الواؤن کی مانیت آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت ایک بچی لگ رہی تھی۔ باعتماد ڈاکٹر عرشیہ تو گویا غائب تھی۔ وہی جو میری گڑیا کہے گی۔ وہ مسکرایا، اور گڑیا اتنی ظالم نہیں تھی کہ بھائی کو گھر ٹوٹنے دیتی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کوئی بوجھ تو نہیں دل پر؟ آزادانہ فیصلہ کرو، تم جیسے کہو کہ ویسا ہی ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر سے پوچھا تھا، آیا اگر اس کے دل میں کوئی بات ہو تو وہ کہہ ڈالے۔ نہیں بھائی، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ احسن کے اتنے احسانات تھے اس پر کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جس بھائی نے باپ بن کر پالا تھا، وہ بہن بھلا اپنے بھائی کا گھر کیسے اجاڑ سکتی تھی؟ عرشیہ نے بھی اپنی خواہش کا گلا گونڈ کر اس نکاح کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو گئی تھی اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے پہلو میں لش پش کرتا فہد سلطان اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود اس کا دل نہیں جیت پایا تھا۔ وہ گود میں بیٹھے عیسیٰ سے کھیل رہی تھی، حالانکہ قسمت نے اسے ہی کھلونا بنا ڈالا تھا۔ وہ گاؤں کی فرسودہ اور جاہلانہ روایت سے چڑنے والی لڑکی وٹے سٹے کی بھیڑ چڑھ گئی تھی، صرف اپنے بھائی کی خاطر۔ آزاد پنچھیوں کی مانند اڑنے والا فہد سلطان بھی بس بہن کے آگے مجبور ہو کر اس رشتے میں بن گیا تھا، ورنہ اسے عرشیہ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دن گزرتے رہے اور پھر شادی کی رات بھی آن پہنچی، جب عرشیہ ماں کا گھر چھوڑ کر پیا دیش سدھارنے والی تھی۔ سفید لہنگے میں اس کا دل ربا حسن کھل رہا تھا۔ عیسیٰ اس کے ساتھ کھڑا فوٹو شوٹ کروا رہا تھا۔ پوپو، آپ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے کھلے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو۔ وہ بھی مسکرائی اور اپنی جتاتی ہوئی نظر اس نے فہد سلطان پر ڈالی، جس نے ایک بار بھی اس کی تعریف نہیں کی، یوں جیسے اس کی اپنی شان میں گستاخی ہونے کا ڈر ہو۔ فہد نے ایک اچنتی ہوئی نگاہ اس قاتل حسینہ پر ڈالی جو واقعی غضب ڈھا رہی تھی، لیکن چونکہ یہ شادی اس کی پسند کی نہیں تھی اس لیے وہ بے نیازی سے رخ موڑ گیا۔ پھوپھو، آپ مجھے گفٹ تو دیں گی نا؟ اس نے بیچارگی سے پوچھا کہ کہیں سسرال جا کر وہ اپنی عادت ہی نہ بدل لے۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں؟ وہ خوش دلی سے مسکرائی کہ گویا فہد کو چرانے کا ایک انداز تھا۔ اگر وہ جل کو کڑا بن بیٹھا تھا تو اس پہ بات پہ بات مسکرانا فرض تھا۔ ماما کہتی ہیں کہ اب عیسیٰ کو پھوپھو کے لیے گفٹ لینا ہوگا، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے نا کہ عیسیٰ کی تو سیلری نہیں آتی۔ وہ معصومیت سے بولا تو وہ ہنس دی۔ فہد ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر اس کے کان یہیں تھے، اس لیے وہ بھی مسکرایا تھا۔ نہیں، آپ کو گفٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس پھوپھو کو صرف اسپیشل والا حق چاہیے۔ اسے پیار سے کہا تو عیسیٰ کا منہ لٹک گیا۔ مما نے منع کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اسپیشل حق نہیں کرنا، پھوپھو کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اف، مجبوری ہی مجبوری۔ یہ آج بھابھی کیا سارا دن بھائی کی بجائے تمہیں پٹیاں پڑھاتی رہی ہیں کیا؟ وہ بڑبڑائی اور آس پاس نگاہ دوڑائی مگر سارا نظر نہ آئی۔ اس کی بڑبڑاہٹ فہد کے کانوں میں پڑی اور اسے برا لگا۔ عرشیہ نے بھی جان بوجھ کر کہا تاکہ اسے برا محسوس ہو، ورنہ اس کی تو سارا سے اچھی خاصی بنتی تھی۔ چلو بھائی، گفٹ دو پھوپھو کو، ورنہ پھوپھو ناراض ہو جائے گی۔
उसे ईसा का हाथ थामा तो वो उसके गले लग गया। ताहम उसके सीने से लिपटे नेकलेस ने ज़्यादा देर उसे गले नहीं लगने दिया। अर्शी ने उसे गोद में उठा लिया था। ईसा ने उसके चेहरे पर निगाह डाली और फिर उसकी नथली को छूते हुए बोला, अब किस कैसे करूं? उसके सवाल ने ईर्ष्या अर्शिया के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। ऐसे उसे दूसरा गाल आगे किया तो ईसा ने नन्हे होठों से उसके गाल चूम लिए। यू आर द बेस्ट पप्पू। वो पुरजोश हुआ तो वो खिलखिलाई। उसकी जलतरीन बजाती हंसी ने फात सुल्तान को लम्हों के लिए मबहूत कर दिया था। अर्शिया जो उसे चिढ़ाने के लिए बहुत खुश नजर आ रही थी। उसे ये मालूम ही नहीं था कि उसकी यही शोख हंसी मुकाबिल के दिल में घर करने वाली थी। उन दोनों को एक साथ कमरे में लाया गया था। पहले सारा और एहसन वहाँ मौजूद रहे और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने बाहर गिरा ली। ईसा वहीं बेड पर अनखिड़कियाँ करते सो चुका था। इसे सारा उसे अपने साथ ले गई थी। उनके जाते ही वो बिना उस पर निगाह डाले बेड से उतरा और बाथरूम में घुस गया। इस शेरवानी में तो उसका दम घुट रहा था। जिसे फौरन से बिस्तर से उतार कर दूसरे कपड़े पहने थे। उसे बाथरूम में जाता देख अर्शिया उठी और एक एक करके अपना जेवर उतारने लगी थी। साफ जाहिर था कि इस शादी की खुशी ना उसे थी और ना ही फहद को। लेकिन वो दोनों इस कमरे में अजनबी बनकर रहने वाले थे। ये सिवाय समझौते के और कुछ नहीं था। जब फहद नहाकर बाहर निकला तो वो अपने कपड़े निकाल चुकी थी। गीले बालों के साथ तौलिया गर्दन से लटकाए वो खुले ट्राउजर्स और बनियान में मलबूस था। अर्शिया ने अलमारी के पट बंद किए और बाथरूम जाने लगी तो यकलख्त उसकी राह में वो हाल हो गया। वो उससे टकराते टकराते बची थी। ये क्या बदतमीजी है? उसके चेहरे पर नागवारी फैल गई थी। कहाँ जा रही हो? इस्तहकाक भरा सवाल चैलेंज करने। उसने हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो अंधे तो नहीं हो, खुद देख सकते हो। लेकिन अभी तो मैंने तुम्हारी खूबसूरती को सराहा भी नहीं, तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। उसकी बात पर ऋषिया को 1000 वॉट का करंट लगा। रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तारीफ ईसा ने कर दी है, काफ़ी है। वो बदतमीजी से खोया हुई। ईसा तुम्हारा शौहर नहीं था, मैं हूँ और मुझे पूरा हक हासिल है। उसके चेहरे को जाजिब नज़र नकुश को वारफतकी से देखता पटरी से उतर रहा था। फजूल बहस मत करें, सामने से हटे। ना आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें, ना मैं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करूँगी। अंडरस्टैंड? वो बातमात लहजे में कहती आगे बढ़ी तो फिर उसके आगे इस्तेदा हो गया था। मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है ऑलरेडी। मुझे एक कमरा तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ा। वो संजीदगी से बोला, मजबूरी है, मैं भी तो अपना घर छोड़ आई हूँ। एक लम्हे को भी उसका एतमाद नहीं डगमगाया। उसके सामने तन कर खड़ी थी, जबकि वो उसे हरासा कर देना चाहता था। वो चाहता था कि अर्शिया उससे दब करे, मगर वो तो शेरनी बनी हुई थी जो एक ही दहाड़ में जंगल के सारे जानवरों पर अपनी दाग बिठा दे। सो हमें इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना? उसने तजवीज़ पेश की। मुझे कपड़े बदलने थे, फिर इस मौजू पर बात करते हैं। अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो एक तरफ से होकर गुजरने लगी थी तो फहद ने उसकी कलाई थाम ली। मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते तुम। वो जिद्दी हो, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आप छोड़े मेरा हाथ। वो वार्निंग देते हुए बोली थी। कभी नहीं। उसने गिरफ्त मजीद सख्त की तो आशिया को कलाई की हड्डी झटकती हुई महसूस हुई और एकदम घबरा गई। सारे खदशात अब सच साबित हो गए थे। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह था, ज़िद्दी और खुद से। यू नो व्हाट, मैंने भाई से कहा था कि आप बिल्कुल अपने बाबा की तरह हैं, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो दांत पीस कर बोली, एंड यू नो व्हाट, मैं अपने बाबा से भी 2 कदम आगे हूँ। उसे तंजिया मुस्कुराहट से कहा। हालांकि अर्शिया की बात ने उसे अच्छा खासा झटका दिया था। यानी वो इस वजह से उससे शादी करने से इनकार कर रही थी कि उसे सुल्तान साहब का भरतो समझ रही थी। अब जब वो गलत समझ रही थी तो उसने भी चेहरे पर वही लेबल चढ़ा लिया था। यू, तुम मुझ पर धौंस नहीं जमा सकते। वो आपसे तुम पर उतरती अपना हाथ छुड़वाने की सही करने लगी थी। लेकिन फहद की गिरफ्त सख्त से सख्तर होती गई। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसे करीब करता सरगोशी में बोला तो पहली बार अर्शिया का दिल अजीब सी लेने धड़का। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी मत करना। अपनी कैफियत पर काबू पाने के लिए वो दहाड़ी। किसी और को पसंद करती हो क्या? उसने यूं ही सरसरी पूछा। हाँ, अपने कॉलीग डॉक्टर सलेमान से मोहब्बत करती हूँ मैं। उसने जताया तो फहद सुल्तान के तासुरात तन गए। खनपट्टी की रगें फूलने
लगी थी। उसे खैरत का ज़बरदस्त तोड़ा पड़ चुका था। जस्ट शट अप। अपनी बीवी के मुंह से किसी गैर मर्द का नाम सुनते वो अपने आपे से बाहर हो गया था। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, लगता है सारे कसबल निकालने ही पड़ेंगे। वो दूसरा हाथ उसकी कमर पर डालता उसे अंदर तक लड़सा गया था। छोड़ो मुझे। अयश्या को एकदम अनहोनी का एहसास हुआ तो उसे दूर होने लगी। हिसार काफ़ी से ज़्यादा तंग था। शायद वो क़यामत तक अपनी मर्ज़ी से उसकी बाहों से निकल नहीं सकती थी। मोहब्बत की बजाय रकाबत की आग ने छड़ पकड़ ली थी और अर्शिया मज़ाहमत नहीं कर पाई। वो जो उसके सहरंगेज़ हुस्न में डूबा दीवाना होना चाहता था, अब महज घोलन का शिकार होकर उसके जिस्म जान में उतरने लगा, ताकि उस पर अपनी ज़ात की मोहर लगाकर किसी और के काबिल ही न छोड़े। अर्शिया मर कर भी नहीं सोच सकती थी कि वाहद सुल्तान ऐसा हो सकता है। उसकी तौक़ियत से बढ़कर जालिम निकला था। तकदीर उन दोनों की अनाओं में लिपटे वजूद देख रही थी। बेड के एक सिरे पर फहद सुल्तान सो रहा था और दूसरे पर अर्शिया बैठी रो रही थी। फहद ने उसका पूर पूर उधेड़ दिया था और दिफा भी नहीं करने दिया था। उसका हाथ वो अपने हाथ में लिए सोया था कि आया वो उठकर सोफे पर ही ना चली जाए। वो उससे अपना कमरा शेयर करने से कतरा रहा था। अब उसे अपने बेड से उठने की इजाज़त भी नहीं दी थी। जब उसकी आँख खुली तो वो बेड पर अकेली सो रही थी। फहद उठकर जा चुका था। उसने बाल समेट कर कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गई। जब नहा कर आई तो उसकी आंखों में सुर्खियों के डोरे थे। यकीनन वो रोने के सबब बने थे। बाल ब्रश करके वो बाहर निकली तो शाइस्ता बेगम और सुल्तान साहब को सलाम किया। वो दोनों नाश्ते से फारिग हो चुके थे और अपनी बहू को देखकर हशाश बशाश नजर आते थे। सुल्तान साहब ने उसे मुंह दिखाई में अच्छे खासे नोट दिए थे और उसके सर पर प्यार भी किया था। शाइस्ता बेगम भी सदके वारी हो रही थी। अर्शिया बेदिली के साथ उनके पास बैठी रही और फिर चंद दिनों बाद वो कमरे में वापस आ गई। उसने दुआ की थी कि कम अज़ कम फास से उसका सामना ना हो, लेकिन वो दुश्मन जान कुछ देर बाद कमरे में मौजूद था। ट्रैक सूट में मलबूस वो पसीने से शराबुर जब कमरे में आया तो उसे देखकर अर्शिया ने रुख फेर लिया। नाश्ता लेकर आओ मेरे लिए। उसने ऐसे हुक्म चलाया जैसे वो उसकी ज़रख़रीद गुलाम हो। अर्शिया कान लपेटे बैठी रही। तुमसे कह रहा हूँ, जाकर नाश्ता लाओ। उसने एक बार फिर से डपटा। उसने अनसुनी कर दी। सुनाई नहीं देता, बहरी हो। वो करीब आता दृष्टि से उसका बाजू पकड़कर बेड से उतारते हुए बोला, मैं तुम्हारी नौकरनी हूँ। खाना है तो जाकर खुद ले लो। हिम्मत मुजतमा करती हुई बोली थी। आंखों में एकदम नमी उतरी थी। इससे पहले कि उसे सख्त सुस्त सनाता, दरवाज़ा बजने लगा। उसका बाजू छटके से छूटकर पीछे हुआ। कम इन। इजाज़त मिलते ही सारा और एहसन अंदर आए। रीसा ने आते ही दी बेस्ट फूफू को भेज डाला था। उसकी कमर सहलाती अर्शिया की आंखों में नमकीन पानी जमा हो गया था। फिर वो सारा और एहसन से मिली। वो लोग उसका नाश्ता लाए थे और मालूम हुआ कि दुल्हन ने भी नाश्ता किया भी नहीं है। लिहाजा सारा बर्तनों में निकाल कर ले आई थी और उन्हें नाश्ता करवाया। अर्शिया चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए उनके साथ हंसती रही, लेकिन दिल खोखला हो गया था। उसने कब सोचा था कि फात सुल्तान ऐसा निकलेगा। वो वाकई अपने बाप से दो हाथ आगे था। मुझे हॉस्पिटल जाना है, अर्शिया ने उसके करीब आते हुए कहा। कल जब उसने शाइस्ता बेगम से अपनी जॉब ज्वाइन करने की बात की थी तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि फात से पूछे कि अच्छी बीवियाँ शोहरों से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। लिहाजा उसे ना चाहते हुए भी पूछना तो नहीं मगर बताना ज़रूर पड़ रहा था। उस वक्त डार्क ब्राउन सूट में बिना मेकअप के बिल्कुल रेडी होकर उसके सामने खड़ी थी। क्यों? फहद ने बाल संवारते देहोकल आईने में नजर आता उसका सरापा देखा तो उंगलियां साकित रह गई। आप मुझे छोड़ देंगे या मैं खुद चली जाऊँ? वो इंतहाई शराफत से पूछ रही थी। तुम शादी के बाद जॉब करोगी और मैं तुम्हें करने दूंगा। वो तंसिया हंसी हंसा तो अर्शिया का जी चाह के उसका मुंह नोच ले। जॉब मेरा पैशन है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उसने आंखें निकाली, लेकिन अब रहना पड़ेगा। उसने दोबारा से अपना काम जारी किया। मैं क्या करूंगी सारा दिन? वो होने बनी। पहाड़ जैसा दिन सर करना कोई मजाक थोड़ी ना था। घर के काम, मामा की हेल्प, अच्छी बहुओं की तरह। उसने मुफ्त का मशवरा दिया जो कि उसे जहर लगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही मिस्टर फात सुल्तान। उसने दांत पीसे। सॉरी, मैं भी तुम्हें नहीं लेकर जा रहा। कंगा रख कर वो मुड़ा और कलाई पर घड़ी बांधी। आराम से घर में बैठो। उसकी गाल थपथपाता हुक्म सुना था। वो परफ्यूम छिड़क कर बाहर निकल गया। रशिया हारे हुए अंदाज में बेड पर बैठ गई। फिर आंसू साफ करती वो भी बाहर निकल आई। उसे हर हाल में हॉस्पिटल जाना था।
वो महज फहद के कहने पर अपना करियर दांव पर नहीं लगा सकती थी। अस्पताल में सारा दिन बहुत अजीब गुजरा। जिंदगी में आने वाली तब्दीली इंसान को बेचैन कर देती है, लिहाजा उसे भी बेकली हुई थी। कॉलीग्स के साथ मिलकर भी उसका माइंड फ्रेश नहीं हुआ था। वो उलझन ज़्यादा दिखाई देती थी। दोपहर के करीब उसकी सिस्टर ने आकर बताया कि कोई उससे मिलने आया है, लिहाजा उसने अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। जो वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया तो अर्शिया बुत बन गई। वो फहद सुल्तान था जो अपनी लहूरंग निगाहों से उसे घूर रहा था। मैंने कहा था ना, घर बैठो, पर यहाँ क्यों आई? वो मेज़ पर हाथ मारता दहाड़ा था। यह अस्पताल है, यहाँ तमाशा क्रिएट मत करें। जब मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी तो मैं आ जाऊँगी। उसने आवाज़ धीमी रखी, वरना गुस्सा तो बहुत आ रहा था। मेरे साथ चल रही हो या मैं घसीट कर ले जाऊँ? उसके अंदाज़े तखातुब पर अर्शिया को झटका लगा। एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन कैसी जाहिलाना बातें कर रहा था। यकीनन उसकी रगों में अपने बाप का खून दौड़ता था, जो कि गांव का असूल परस्त वडेरा था। फहद, आप। उसकी बात काट दी गई। चलो। उसका बाजू पकड़कर उठाने लगा और महज तमाशा बन जाने के खौफ से उसे अपना तेज दबाना पड़ा और गुस्सा जहर मार करती वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, क्योंकि एक कोलीग अंदर आ गई थी और वो चुपचाप उसके साथ अस्पताल से निकल आई। ताहम दिल में हजारों गालियां निकालना नहीं भूली थी। किससे पूछ कर गई थी तू? गाड़ी में बैठता वो चिल्लाया था। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई, तो फिर ये हक क्यों जताते हैं? मुझे मेरी जिंदगी क्यों नहीं जीने देते? वो फट पड़ी कि आज उसने बदतमीजी की इंतहा कर दी थी, क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो, बीवी हो मेरी। उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला, तो फिर गला दबा दे मेरा। इतनी पाबंदियों से तो मैंने वैसे ही मर जाना है। आंखों में आती नमी को उसने बामुश्किल हलक में अंडेला। वो बात बात पर रोने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन फहद का बेरहमाना रवैया उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। ये भी कर दूंगा, वेट, इतनी जल्दी क्या है? और मक्कारी से हटा तो अर्शिया के तन बदन में जैसे आग लग गई। मैं एहसन भाई को सब कुछ बताऊंगी, उसने धमकाया। मैं तुम्हारी जुबान भी खींच लूंगा, वो गराया। बर्क रफ्तारी से गाड़ी भगाते वो 10 मिनट में घर पहुंच चुका था। अर्शिया ने बाहर निकलते तरख से दरवाज़ा बंद किया, जबकि वो स्ट्रिंग पर सर धर गया था। न जाने कि उसे खदशा था कि कहीं अर्शिया से छोड़कर ही ना चली जाए, या फिर किसी डॉक्टर सुलेमान से। अगले रोज़ वो फिर अस्पताल के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन फहद सुल्तान बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चला गया था। वो बेबसी की अथाह गहराइयों में उतरती खुद को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रही थी। ये शख्स उसकी ज़िंदगी निगल रहा था और वो उसे ऐसा करने नहीं दे सकती थी। मजबूरन उसे एहसन को फ़ोन करके बताना पड़ा था। अभी शादी को दिन ही कितने हुए अर्शी, और तुम अभी से जॉब करना चाहती हो? जहाँ तक मुझे लगता है फाद ने तुम्हें इसीलिए मना किया होगा। अभी तुम कुछ दिन रुक जाओ, फिर हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना। एहसन ने उल्टा उसे समझाना शुरू कर दिया। फाद उससे पहले इस मसले पर बात कर चुका था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। वो अंदर ही अंदर तड़प कर रखी थी। अब भाई को सारी बात भी नहीं बता सकती थी, लिहाजा फ़ोन बंद कर दिया। अजब मुखमसे में फंस गई थी उसकी नाजुक जान। दोपहर तक वो सोती रही थी। बाद अज़ां दरवाज़ा खोला तो वो खुद ब खुद खुल गया। फाहद मुलाजमा से कहकर गया था कि 1 घंटे बाद दरवाज़ा खोल दे, लेकिन अर्शिया अपनी टेंशन में फंसी थी कि उसे एहसास ही न हुआ कि कब और किसने दरवाज़ा खोला था। फाहद सुल्तान और अर्शिया फीस के मबीन 24 घंटे एक सर जंग रहती थी, जो दोनों आपस में लड़ रहे थे। उस दौरान यकीनन फाहद का पल्ला भारी रहता था, क्योंकि वो मर्द था और धौंस जमाकर अपना मनवा लेता था। अर्शिया आजकल काफ़ी उदास रहती थी और ये चीज़ फाहद के अंदर खुलबली सी मचा रखती थी। पानी देना मुझे? हस्बे आदत जग और गिलास सामने मौजूद होने के बावजूद उसने अर्शिया को उठाना फर्ज समझा। तबीयत खराब है मेरी, खुद उठ कर ले ले। अर्शिया ने नागवारी से उसे देखा और फिर आंखें मूंद ली। वो भी जिद्दी और हटतरम हो रही थी। उसके कसपल निकालने के चक्कर में फहद सुल्तान उसे या तो फिर पत्थर कर रहा था या फिर टुकड़ों में तकसीम कर रहा था। सीधी तरह कहो कि जॉब करनी है, ये बहाने बनाने की आखिर क्या ज़रूरत है? पानी का गिलास भरकर पीने के बाद वो बेड पर आन बैठा। कुछ कहा है मैंने? खिलाफी मामूल उसे खामोश पाकर उसने दोबारा छेड़ा। मुझे नींद आ रही है, सोने दे। उसने आंखों से बाजू हटाकर नकाहत भरे लहजे में कहा। कुछ दिन से उसकी तबीयत काफ़ी बोझल थी और उसे खुद अंदाज़ा नहीं था क्यों वो ऐसा महसूस कर रही है। फाहद ने उसका हाथ थाम लिया, जो कि जलते हुए अंगारे की माने तहक रहा था। तबीयत खराब है तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उसे फिक्र हुई, मैं मेडिसिन ले चुकी हूँ।
उसने अपना हाथ निकालना चाहा लेकिन हमेशा की तरह गिरफ्त सख्त करती थी। मुरझा गई हो तुम, महज 2 हफ्तों में क्या हाल कर दिया है तुमने अपना। उसके बाल संवारते हुए ताज्जुब से बोला तो अर्शिया गश खा गई इस फिक्र और इत्तेफाक पर। ताहम तल्खी से मुस्कुराना नहीं भूली। फूलों को तोड़ दिया जाए तो वो मुरझा ही जाता है मिस्टर फहद, लेकिन शायद आप ये बात कभी नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझूंगा मैं, समझाओ, कोशिश करके देखो। मैं फजूल काम नहीं करती। और बरजस्ता जवाब पर फहद का मुंह खुल गया, लेकिन उसे बीमार तस्वुर करके वो जान बख्श गया। जल्दी से ठीक हो जाओ, अपना ख्याल रखो, मेरी हर बात मानो, मैं फिर मैं तुम्हें जॉब पर जाने दूंगा। उसे अपनी तरफ से बम फोड़ा था, लेकिन वो जानती थी कि यकीनन हसन भाई ने उसे फ़ोन करके लताड़ा होगा, क्योंकि आज सुबह उसने फ़ोन पर उसकी शिकायतें लगाई थी। मेहरबानी रुक फिर की, उसे वाकईतन काफ़ी नींद आ रही थी। फहद ने उसका हाथ अपने लबों से लगाया और सोने से कब अर्शी ने उसकी हरकत को महसूस किया। थम फहद सारी रात उसके सराहने बैठा उसे वारफतकी से देखता रहा। कभी उसकी पेशानी छूकर बुखार चेक करता तो कभी उसके बालों से खेलने लगता और कभी लब उसके रुखसार पर रखकर सुकून महसूस करता। उस लड़की में न जाने क्यों उसकी जान बस गई थी। वो चाहकर भी बुरा नहीं बन पा रहा था। वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया था। वो हॉस्पिटल बाकायदगी से जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उसकी तबीयत में जो फ़र्क आया था वो खासा हैरत अंगेज था। उसने एक और निजी अस्पताल से अपना मुआयना करवाया था। रिपोर्ट्स आई तो वो दंग रह गई। वो प्रेग्नेंट थी। उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। लिहाजा अस्पताल से लीव लेकर वो जल्दी घर निकल आई। कमरे में आई तो बेड पर फैले कपड़े और सफ़ी बैग को देखकर उसे चमकना हुआ। रिपोर्ट्स वहीं रखकर उसने देखा वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। फिर कुछ देर के बाद अंदर से फहद सुल्तान बरामद हुआ। उसे एक नज़र देखती और फ्रेश होने चली गई। उस वक्त उसका अस्पताल से वापस आना उसे खटका लगा था। दरहकीकत तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके थे, क्योंकि फहद का भी ये घर आने का वक्त नहीं था। फहद की नज़र रिपोर्ट्स पर पड़ी तो उसने बाल रगड़ कर तौलिया बेड पर उछालते हुए पेपर्स उठा लिए और फिर उसके चेहरे पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट छा गई। रिपोर्ट्स वापस रखकर उसने शर्ट पहनी और बटन बंद करने लगा। अर्शिया बाहर आई तो उसे देखकर अटकी। शायद वो कहीं जा रहा था, मगर उसकी अना ने सवाल करने से बाज रखा। इससे पहले कि उसकी पहलू से गुजर जाती, फहद ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। थैंक यू सो मच अर्शी। फिर उसे यकलख्त अपनी बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया और खुशी से झूमने लगा। फहद छोड़े, क्या कर रहे हैं? उसे चक्कर सा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, काश मैं तुम्हारे साथ ये खुशी सेलिब्रेट कर सकता, उसे हसरत से कहा। वो नासमझी से उसे देखने लगी। नीचे उतारे मुझे। फहद ने उसे नीचे उतारा, मगर वो खुद से दूर नहीं होने दिया। माय गॉड, मैं बाप बनने वाला हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। और सदके दिल से बोला। खुशी हद से सवा थी। अर्शिया मुस्कुरा दी। पहली बार वो दोनों खुश थे। शायद पहली बार उन दोनों के दरमियान कोई तलक कलामी नहीं हुई थी। मैं एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, 1-2 रोज़ में वापस आ जाऊँगा, तो फिर मिलकर पार्टी करेंगे। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर उसने मोहब्बत से कहा तो वो झींक गई थी। मुझे स्पेशल वाला हक चाहिए अर्शी। अजीब फरमाइश थी कि वो सटपटा कर रह गई थी। प्लीज़। वो मुल्तजी हुआ। नहीं। अर्शिया ने साफ इनकार किया। पछताओगी मिसेस, जाते हुए शौहर को नाराज़ कर रही हो। फायज सुल्तान ने मसनूई नाराज़गी से कहकर लब उसकी पेशानी पर रखे और फिर अपनी तैयारी में जत गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो अपना बैग लेकर निकल खड़ा हुआ था। न जाने क्यों अर्शिया के दिल को धड़का सा लगा। रिंगटोन बजी तो उसने आकर फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से जो खबर मिली उसने अर्शिया का खून निचोड़ लिया। फाज सुल्तान रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया था और यह हादसा उसे मेन रोड पर पेश आया था। अभी वो निकला ही था कि तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसकी गाड़ी को उछाल कर कई फीट दूर जा गिराया था। उसे रेस्क्यू करके अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था। अर्शिया यूं खड़ी थी कि गोया 7 आसमान उसके सर पर आन गिरे हो। शाइस्ता बेगम को गड़बड़ का एहसास हुआ तो उन्होंने आकर उससे फ़ोन लिया, लेकिन दिल की दुनिया तो उनकी भी अंधेर हो गई थी। ये जानकर कि इनका लखते जिगर आईसीयू में था। कई घंटों में सब अस्पताल में मौजूद थे। शाइस्ता बेगम की हालत काफ़ी ख़राब थी। सुल्तान साहिब अलग परेशान थे, जबकि सारा की जान भी सूली पर लटकी हुई थी। अर्शिया बिल्कुल खामोश थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही जुमला गूंजा था, मुझे स्पेशल वाला हक चाहिए अर्शी। पछताओगी मिसेस, जाते हुए शौहर को नाराज़ कर रही हो। तो क्या वो वाकई नाराज़ हो गया था? क्या उसे चले जाना चाहिए था? खैर, अब इतना बुरा तो नहीं था। वो दिल में उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगने लगी।
بعض رشتے تکلیف میں پھر بھی اہم ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہوتی۔ ارشیا کی وہ فہد سلطان کی اب عادت ہو گئی تھی۔ محض چند دنوں میں اس کا دل بدل گیا تھا۔ خیر، بدلنے کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، اور یہاں تو کتنے دن گزر گئے تھے۔ اب جب اس کی کوکھ میں فہد سلطان کی نشانی تھی تو اس شخص اس کے لیے کیسے اہم نہ ہوتا۔ سرتاج تو تھا ہی، دلدار بھی بننے والا رکھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ایک بے بس فریاد کی ماری نیچے گرا اور نفرت کی دیوار میں پہلی درار پڑ گئی۔ فہد سلطان کا خون بہنا رائے گاہ نہیں گیا تھا، اسے ہوش آ گیا تھا، وہ اب کچھ بہتر تھا۔ چند دن بعد ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو اسے ارشیا کافی بدلی پتلی لگی۔ اس کی ہر شے کا خیال رکھتی، ہسپتال بھی نہیں جا رہی تھی بلکہ بس گھر پر رہ کر اس کے لیے پرہیزی کھانے بنانے میں جتی رہتی۔ اسے یہ تبدیلی اچھی تو لگی مگر کچھ ہضم نہیں ہو سکا۔ اب کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ٹیبلٹس اور پانی لے آئی تو فہد نے بغور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی جو کہ اسمارٹ تھا۔ مجھے نہیں کھانی، اتنی کڑوی دوائی ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ٹیبلٹ تو پھر جیسے تیسے نگل لیتا تھا لیکن یہ سیرپ گویا گلے میں ہی اٹک جاتے تھے۔ اتنی گندی اسمیل آتی کہ گویا جی چاہتا تھا اگلے پل منہ سے باہر نکال پھینکے۔ اس لیے اس نے فی الحال کھانے سے انکار کر دیا۔ میں سوچتی تھی پتہ نہیں عیسیٰ کس پر چلا گیا۔ آج اس کا ماخذ بھی مل گیا۔ وہ پرسکون انداز میں کہتی دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے پرس سے چاکلیٹس نکال آئے۔ یہ لے، دوائی لینے کے بعد چکھ لیجیے گا۔ چاکلیٹس رکھتے اس نے دوائی سامنے کی۔ ہاتھ کی پیشانی پر بل پڑے۔ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں کھانی تو زبردستی کیوں کر رہی ہو؟ اسے خواہ غصہ آیا۔ آپ بھی تو کرتے ہیں۔ اس نے گولی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد کھا لوں گا، ابھی موڈ نہیں ہے۔ اور زچ ہوتا ہر حال میں انکار کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ڈاکٹر بنی بس اسے کھلا کر ہی باز آنے والی تھی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ابھی کھائیں۔ اس کے ہاتھ سے نکال کر گولیاں منہ میں رکھی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ پھر سیرپ کا چمچ بھر کر زبردستی اس کے منہ میں دے دیا۔ کیا چیز ہو تم؟ وہ پانی پی کر منہ کے نقشے بگاڑتا فوراً چاکلیٹس اٹھا کر کھانے لگا تھا۔ سیرپ کا ذائقہ واقعی ناقابل برداشت تھا۔ ارشیا نے فوراً ڈھکن بند کر کے بوتل ایک طرف کی اور اس سے پہلے کہ فرار ہوتی فہد نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتی اس کے اوپر آن گری تھی۔ کچھ زیادہ پر نہیں نکل آئے تمہارے؟ میرے ساتھ زبردستی کرتی ہو؟ وہ پیشانی پر لکیریں سجائے اسے دیکھنے لگا۔ ہاتھ تو یہ حق صرف آپ کو حاصل ہے کیا؟ وہ بڑی ڈھٹائی سے بولی، میری فکر کرنے کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں میں، اور نہ ہی اپنے بچے کو یتیمی کی زندگی گزارنے دوں گا۔ اسے باور کروایا تو سلگ اٹھی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اب وہ ایسا بھی نہیں چاہتی تھی، اختلاف اور دشمنی اپنی طرف، لیکن انسان جان کی اہمیت تو تھی نا۔ بہرحال اس کی نظروں میں اصولاً تمہیں مجھے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، لیکن تم مجھے کچھ دنوں سے پریشان نظر آ رہی ہے، اسپتال بھی نہیں جا رہی۔ دیکھو مجھے احسان لینے کی عادت ہے نہ ضرورت، اس لیے میری وجہ سے نا اپنی روٹین خراب مت کرو، اور جو کرنا چاہتی ہو وہ کرو۔ میں اپنی دوائی خود کھا سکتا، اپنا خیال خود رکھ سکتا۔ اس نے لمبا چوڑا لیکچر دیا تو آنکھیں پٹ پٹائے اسے بس دیکھ رہی تھی، اور پھر اٹھنے لگی لیکن وہ ڈیٹ ابن ڈیٹ اسے پھر سے اپنے سینے سے گرا گیا۔ میری سوال کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے نہیں ہل سکتی۔ ضدی انداز۔ پہلی بات، میں ایک انسان ہی، حساس دل ہوں، دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر بھی ہوں۔ مریضوں کی دیکھ بھال میری روٹین ہے، میں اپنے کام سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ اور دوسری بات، آپ میرے شوہر ہیں، اس حالت میں ہے کہ خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتے، تو میں آپ کو یوں چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی نبھانے چلی جاؤں گی تو آپ کی ماما اکیلے سب کچھ کیسے مینیج کریں گی؟ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں تو ٹھیک ہے، کل سے ہاسپٹل جوائن کر لوں گی، پھر آپ کے کام جانے اور آپ کی ماما۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بات کرتی اس کی حواس ٹھکانے لگی تھی۔ کم از کم فہد سلطان کو ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ حق ہاں، میں تو سوچتا تھا میری لو میرج ہوگی، میری بیوی روز مجھے پرپوز کرے گی، ہمیں اسے اپنی باہوں میں بھر کر دنیا مافیہ سے بیگانہ ہو جایا کروں گا۔ اس نے حسرت سے شاعرانہ انداز میں کہا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا نا، کیونکہ میں آپ کی زندگی میں آ گئی۔ اس نے ایک پل کی اس کے سہانے خوابوں کا تاج بوس زمین کر دیا تھا۔ سن، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ اس کے سوال نے ارشیا کا دماغ الٹ دیا۔ ہوش میں ہیں آپ؟ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی، اور آپ مجھ سے ایسے
बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं? एक वक्त आंखों में उसकी नमी आई तो फहद सुल्तान हरासा हो गया। नहीं, वो उसे बात संभालने की कोशिश की। छोड़े मुझे। वो घर आई, लेकिन हमेशा की तरह गिरफ्त चट्टानी होगी। आई एम सॉरी। उसे रोता देखकर वो बेकरार हुआ। मुझे लगा शायद उस रात तुमने खुद कहा था कि किसी और को। वो झूठ इसलिए बोला था ताकि आप बदगुमान और मुझसे दूर रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका ना। उसके आंसू फहद सुल्तान के सीने पर गिर रहे थे। मैं जानता था मेरी बीवी कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो मुस्कुराया था। दिल में जैसे कोई ठंडी फवार उतरने लगी थी। अशिया आली से उसका चेहरा तकने लगी थी। ऐसे क्या देख रही हो? मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आज स्पेशल वाला हक लेकर ही रहूंगा। उसे शरारत से कहा तो अर्शिया फिर उसकी गिरफ्त से निकलने की सही करने लगी। एक सवाल का जवाब तो अर्शी, अगर मैं इस हादसे में जान बहक हो जाता। अर्शिया ने फौरन हाथ उसके होंठों को रख दिया। फहद की आंखों में दिलनशी सी चमक हुई और उसने होंठों से उसकी उंगलियां चूमी। अर्शिया ने सर उसके सीने पर रखकर आंखें मूंद ली। जबरदस्ती ही सही, मगर आप मेरे शौहर हैं, आपके बगैर अधूरी फहद। उसने इकरार किया तो मसरतों से घरता शादमा हो गया था। थैंक यू अर्शी। मैं तो समझा था शायद सिर्फ मोहब्बत ने मेरे दिल पर ही दस्तक दी है। उसे शरारत से उसके बालों को छूते हुए कहा, हाँ, सब कुछ सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ओ कुलसी, यानी तुम भी कर सकते हो? उसने लब दबाए। क्यों नहीं, बस होगी मेरी मुझे भी। वो मुस्कुराए। तो फिर एक बार कहो ना। दिल जिद्दी था। एतराज सुने बिना इसे छोड़ने वाला नहीं था। क्या? वो अनजान बने। उसकी बाजू में दर्द की ठेस उठी तो उसने अर्शी की कमर से हाथ हटा लिया। क्या हुआ? अर्शी ने उठकर उसका बाजू देखा तो फक रह गए। जख्म से खून बह रहा था। वो गिरफ्त को सख्त करने के चक्कर में टांगे तोड़ गया था। ये क्या किया आपने? वो एकदम परेशान होती उसके जख्म का मुआयना करने लगी। फिर दवाई लगाकर इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि ज्यादा दर्द ना हो सके। ये सब करने के बाद वो उठने लगी तो फहद ने उसे पुकारा। अर्शिया आंखों में बेताबी थी। वो वापस उसके करीब आई तो फहद ने उसका हाथ पकड़ लिया। ताहम अब की बात गिरफ्त कमजोर थी। मेरे साथ बैठो प्लीज, तुम्हें देखना चाहता। इल्तिजा ऐसी थी कि अर्शिया का दिल जोरों से धड़का और वो वहीं टिक गई। फिर उसका हाथ अपने लबों से लगाती उसके गले लगी और शगरफी लब उसकी दाढ़ी ज़दा गाल पर रखे। ये आपका स्पेशल हक। इस अल्तफात पर वो दिल से हंसा और फिर उसका सर अपनी गोद में रख गया। सारी जिंदगी के लिए मैं आपके पास हूँ फहद। आपने अब सिर्फ मुझे ही देखना है। उसके लोगों पर सच्ची मुस्कान देखता वो भी मुस्कुराया। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, यही सुनना चाहते हैं ना? वो बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। उसे गहरा मुस्कुराकर सर हिलाया और फिर हाथ बढ़ाकर उसके सर की पुष्ट पर रखता उसे खुद पर झुका गया। अर्शिया के बालों में उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर छुप गया था। मोहब्बत अपना आप मनवा चुकी थी। वफा अपना दस्तूर निभा रही थी।